Hello everybody, today we are going to solve a brilliant question of J Advanced 2020 of rotational motion. The chapter which most aspirants fear, but I found rotational motion very interesting and this question even more interesting, and I'm going to explain it like very properly so that you understand why I did something and what I did. Okay, and this is a question which I could not write, and it was very long to write, but it is very easy to understand. Okay, so let's get started. What we are given is a scale. Okay, we are given a scale. Okay, this is a 100 centimeter scale. 100 centimeter scale. Okay, now one finger we have kept under this point. Okay, one finger we have kept under this point, and one finger we have kept 90 centimeter apart from this point. Okay, so this is a 100 centimeter scale. One finger is under the like origin, and the other is under the 90 centimeter point. Okay, now they are saying कि हम like we brought the fingers together, we are trying to like equal force हम लगा रहे हैं दोनों side से, and we are applying the force so that fingers come together. Now initially क्या हुआ, this finger moves towards the right, towards the center, and this finger does not move. Okay, this finger moves but this does not move. Okay, then this comes to a stop somewhere over here and this finger starts moving. Okay, this finger starts moving, and then this finger stops, and again this finger starts moving. Now we have to tell that when this finger, the left finger, stopped, which was at the origin, it stopped, and then this finger started moving, and then it stopped. So at what point does it stop, or at what distance from the center does it stop? So let me make myself clear once again about the question. Very interesting question. I'll say a bit in Hindi also for now. तो बेसिकली हमें एक स्केल दिया हुआ है ऑफ 100 सेंटीमीटर्स. हमने ओरिजिन पे एक फिंगर रख दी एंड हमने 90 सेंटीमीटर पे एक फिंगर रख दी. नाउ हम दोनों फिंगर्स पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बट सिर्फ ये फिंगर स्टार्टिंग में मूव करी, फिर ये कहीं पे रुक गई और ये फिंगर मूव करने लग गई, और फिर जब ये फिंगर मूव करके रुकी तब हमसे पूछा है कि 50 सेंटीमीटर पॉइंट से किस डिस्टेंस पे ये फिंगर रुकी, जो हमने इनिशियली 90 सेंटीमीटर पे प्लेस करी थी. So this is the question. I hope you understood the question, and now we can start solving it. Brilliant rotational motion concept in this. So मैं proper diagram बना लेता हूँ. ये है 90 सेंटीमीटर, and हमें coefficient of static friction given is 0.4, coefficient of kinetic friction is given as 0.32. ठीक है. Now अब समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है. बेसिकली इस जो स्केल है इसमें फ्रिक्शन है. जब हम फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स उसे अपोज करेगा. अगर हम फोर्स F यहाँ ऐसे लगाएं, यहाँ ऐसे लगाएं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से हमें अपोज करेगा, है ना. फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज दैट मूवमेंट ऑफ फिंगर. अब फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली जो इस पॉइंट पे लाइक है फिंगर, इस पॉइंट पे जो ज्यादा फिंगर है इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है स्केल का, वो हम निकालेंगे कितना पड़ रहा है. आई विल शो यू. इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है एंड हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, न्यू इनटू द नॉर्मल रिएक्शन. सो जो भी न्यू है 0.4 इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा फ्रिक्शन का फोर्स. अब क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा है, एंड अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, सो हमारा फोर्स इस फिंगर को मूव नहीं करने पाएगा, बट इस पे कम फोर्स लग रहा है, इस फिंगर पे इस स्केल का कम फोर्स लग रहा है, सो ये मूव करना स्टार्ट कर देती है. ओके, क्योंकि फोर्स जितना हमने एक्सर्ट करा दोनों साइड पे, दैट वाज इनफ टू ओवरकम फ्रिक्शन ऑन दिस फिंगर, बट दैट वाजंट इनफ टू ओवरकम फ्रिक्शन ऑन दिस फिंगर. ठीक है. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. अब निकाल लेते हैं आपको दिखाने के लिए. आई कैन ऑल्सो शो यू कि बेसिकली ये यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस फिंगर पे, कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा इस फिंगर के लिए, कितना होएगा. लेट मी जस्ट शो यू.
सो ये यहाँ पे एक फिंगर है, यहाँ पे एक फिंगर है. अब लेट्स से यहाँ पे N1, यहाँ पे N2, यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा स्केल का, mg लग रहा होगा, है ना. एंड ये है 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर. ओके, अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंजर्व कर रहा है, मतलब क्योंकि दिस इज एन इक्विलिब्रियम राइट नाउ, सो वी कैन से नेट टॉर्क इज 0. अगर नेट टॉर्क 0 है तो mg इंटू 50 इक्वल्स टू 90 इंटू N2, सो N2 इक्वल्स टू 5 mg बाय 9. ये आ गया हमारे पास N2 की वैल्यू. सिमिलरली इस N2 के अबाउट वो टॉर्क नेट 0 कर देते हैं, तो दिस डिस्टेंस इज 40 एंड दिस डिस्टेंस इज 90. सो mg इंटू 40 इक्वल्स टू N1 इंटू 90. सो N1 इक्वल्स टू 4 mg बाय 9. ठीक है, तो ये हमारे पास N1 आ गया 4 mg बाय 9 एंड N2 आ गया 5 mg बाय 9. सो वी कैन क्लियरली सी N2 की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन उस पर ज्यादा लग रहा होगा. ठीक है, अब N1 4 mg बाय 9 आ रहा है तो इस पर फ्रिक्शन होएगा 4/10 इंटू 4 mg बाय 9. ठीक है, एंड ये उस फ्रिक्शन फोर्स को हमारी फोर्स जो है वो ओवरकम कर पा रही है. ठीक है, सो लेट्स से ये फिंगर मूव कर x1 डिस्टेंस पे आ गई. ठीक है, अब आपको अगर मैं लिख लेता हूं, कभी अगर यूज हुए तो 4 mg बाय 9 N2 इक्वल्स 5 mg बाय 9. ठीक है, अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं जब हमारी फिंगर शिफ्ट हो गई यहां तक एंड फिर N2 मूव, मतलब सेकंड फिंगर मूव करनी स्टार्ट कर गई. दिस इज आवर स्केल. फिंगर गई, ये हमारा मिड पॉइंट है. फिंगर गई यहाँ पे आके रुक गई. ठीक है, एंड ये है हमारा लेट्स से x1 डिस्टेंस. ठीक है, एंड फिर ये फिंगर यहाँ पे अभी भी 90 पे है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ जाकर रुकी. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से ये N3 अप्लाई हो गया, यहाँ पे N4 क्यों? आप क्या हो गए, ये फिंगर तो मूव करी नहीं, ये फिंगर तो मूव करी नहीं, तो इसका तो नॉर्मल रिएक्शन सेम ही रहना चाहिए ना. नो, क्योंकि जैसे जैसे ये फिंगर राइट की तरफ मूव कर रही है वैसे वैसे इस पे लोड बढ़ रहा है ना. यू गेट माई पॉइंट. जैसे जैसे राइट की तरफ ये फिंगर मूव करी वैसे वैसे उस पे लोड बढ़ रहा है. ठीक है, सो देखते हैं कहां पे जाके स्टॉप हुई. ठीक है, लेट्स सी कि ये कहां पे जाके स्टॉप हुई. तो इसकी स्टॉप होने की कंडीशन क्या है? इसकी स्टॉप होने की कंडीशन ये है कि जब इस फिंगर का काइनेटिक फ्रिक्शन इस फिंगर की स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तब ये स्टॉप होएगी. क्योंकि जब ये मूव करिए इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, एंड जब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, मतलब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, जब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मूवमेंट का फ्रिक्शन इसके स्टैटिक खड़े हुए फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तब ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, है ना. तो हमें बस वो केस ढूंढना है कि कब उसका लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन से मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो ठीक है, अब एक तो ये इक्विलिब्रियम में है, सो वी कैन से टॉर्क नेट इक्वल टू 0, है ना. टॉर्क नेट अबाउट दिस पॉइंट इज 0. सो mg x1 equals to N4 40 plus x1, है ना. एंड N4 हमारे पास आ गया mg x1 अपॉन 40 plus x1, है ना. एंड N3 हमारे पास कितना आया जब वो रुका? N3 इक्वल्स टू इसके अबाउट N3 ऐसे नहीं कर सकते, इसके अबाउट टॉर्क नेट 0 कर दें. सो mg इंटू 40 इक्वल्स टू N3 इंटू 40 प्लस x1, ये हो जाएगा. सो N3 इक्वल्स टू 40 mg अपॉन 40
प्लस x1, ठीक है। तो ये हमारे पास n3 आ गया, ये हमारे पास n4 आ गया। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है, न्यू स्टैटिक इंटू n4, सो mg x1 अपॉन 40 प्लस x1 इंटू 4/10, ठीक है। एंड यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है, 40 mg अपॉन 40 प्लस x1 इंटू 32/100, है ना। तो ये यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। अब जब ये जस्ट बड़ा हो जाएगा, ये जस्ट बड़ा जब होएगा, मतलब ये जस्ट इक्वल हो जाएगा इस स्टैटिक के, ये जब इक्वल हो जाएगा, लाइक इक्वल या जस्ट बड़ा, इन्नू सा बड़ा हुआ, वैसे ही ये फिंगर स्टार्ट हो जाएगी मूव करनी। जब ये इन्नू सा बड़ा हुआ तो लेट्स से जब ये इक्वल हुआ तभी ये फिंगर मूव करनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब ये और ये इक्वल हुआ तब फिंगर मूव करनी स्टार्ट हो गई, जो यहाँ बनी है, ठीक है। सो 40 mg अपॉन 40 प्लस x1 इंटू 32/100 इक्वल्स टू mg x1 अपॉन 40 प्लस x1 इंटू 40/100, 100 कटा, 40 प्लस x1 कट गया, mg कट गया, सो 40 कट गया, 32 इक्वल्स x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें अब पता चल गया कि ये जो फिंगर आके आगे आई और फिर रुक गई, कितने डिस्टेंस पे रुकी, 32 फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये कितनी चली, 18 सेंटीमीटर चली, 18 सेंटीमीटर चल के ये फिंगर रुक गई एंड हमारी नेक्स्ट फिंगर चलनी स्टार्ट हो गई, ओके। सो 18 मतलब यहाँ पे 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इसका डिस्टेंस है, 18 सेंटीमीटर चली एंड फिर रुक गई। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे mg फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ से लेट्स से, अब ये चली यहाँ से 90 सेंटीमीटर से एंड आगे आई एंड किसी x डिस्टेंस पे रुक गई, जो हमें फाइंड करना है। तो ये आगे आई एंड किसी x डिस्टेंस पे आके रुक गई, ये x डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब रुकी तब ये हो जाएगा n5 और ये हो जाएगा n6, ये हो गया n5, ये हो गया n6, x डिस्टेंस पे आके रुक गई, यहाँ पे mg अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये बेटर हो जाएगा, बट आई थिंक अंडरस्टैंड मतलब समझ आ ही गया होगा। तो ये यहाँ पे 32 सेंटीमीटर पे रुक गई, 32 सेंटीमीटर अवे, एंड ये यहाँ पे x डिस्टेंस अवे रुक गई, ठीक है। अब हमें सेम चीज अप्लाई करनी है, ये कब रुकेगी, जब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। हमें पता है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन से जब बड़ा इसका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाली अब ये उंगली मूव करनी स्टार्ट करेगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा हो गया एंड एट अ टाइम एक ही फिंगर मूव कर सकती है। आप अगर एक्सपेरिमेंटली करोगे, आई डोंट नो अगर ये यहाँ पे दिखेगा, तो पहले अगर आप मूव करनी ऐसे मूव करा, ये फिर ऐसे मूव करा, आई डोंट नो अगर दिख रहा होगा या नहीं, बट ऐसे समथिंग लाइक दिस, यही क्वेश्चन है हमारा। सो आई डोंट नो कि आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट कोई नहीं। अब जब इसका, अब ये फिंगर स्टैटिकली यहाँ पे रुकी हुई थी, तो टॉप नेट 0 करवा देते हैं, पहले इसके अबाउट फिर इसके अबाउट, ठीक है। सो आपको समझ आ ही गया होगा, प्रीवियस केस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब ये रुकेगी, काइनेटिक स्टैटिक और वो सब। अब यहाँ पे सीधा टॉप नेट 0 करते हैं, सो अबाउट दिस पॉइंट टॉप नेट 0 हुआ, तो mg इंटू 32 इक्वल्स टू n6 इंटू 32 प्लस x, हाँ n6 इंटू 32 प्लस x, ठीक है। तो n6 मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पे, n6 equals to 32 mg अपॉन
32 प्लस x एंड n5 की वैल्यू अब n6 के अबाउट टॉप नेट जीरो करेंगे तो mgx इक्वल्स टू n5 इंटू 32 प्लस x, n5 इंटू 32 प्लस x, mgx अपॉन 32 प्लस x इक्वल्स टू n5, ये हमारे पास हो गया n5 और ये हमारे पास हो गया n6। अब n6 का काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन n5 का स्टैटिक, तो वो जब जस्ट ग्रेटर देन होएगा मतलब हम इक्वल कब हो रहा है वही देख लेते हैं, किस डिस्टेंस पे इक्वल हो रहा है तभी वो n5 मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। सो mgx अपॉन 32 प्लस x इंटू 0.4 इक्वल्स टू 32 mg अपॉन 32 प्लस x इंटू 0.32, ये कटा mg दोनों साइड से कट गया, ठीक है। बचा क्या 4 अपॉन 100 40 अपॉन 100 x इक्वल्स टू 32 इंटू 32 अपॉन 100 कट गया, नीचे 40 आ गया, सो x इक्वल्स टू 32 इंटू 32 अपॉन 40। 4 से ये 10 हुआ, 4 से ये कटा 8 हुआ एंड 32 इंटू 8 कितना हुआ 320 माइनस 64 256, तो x इक्वल टू 25.6, तो 25.6 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ये वाली फिंगर स्टॉप करेगी। इतना ब्रिलियंट क्वेश्चन जो मैं बता नहीं सकता, इतना इंटरेस्टिंग एंड इतना ब्रिलियंट क्वेश्चन, आई रियली लव्ड इट। जे एडवांस 2020 का रोटेशनल मोशन का है। रोटेशनल इसमें लाइक आपको सोच लग रहा होगा जिसमें रोटेशन का हो रहा है, बट हमने इसमें टॉप नेट जीरो करा था क्योंकि वर्टिकली स्केल का कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, राइट। इस स्केल इक्विलिब्रियम में है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द फिंगर्स, सो टॉप नेट जीरो हम अप्लाई करते हैं एंड ये इजी बहुत लोगों को लग सकता है, बहुत लोगों को मुश्किल लग सकता है क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसमें सोचने वाली बात है कि मतलब कैसे क्या हो रहा होगा और कुछ नहीं है, सॉल्विंग तो बहुत इजी है इसकी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई लव दिस क्वेश्चन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज स्मैश द लाइक बटन।